آئل کمپنیز کے بجائے صرف پیٹرول پمپس پر ٹیکس نامنظور، پیٹرول پمپس مالکان کا مطالبات کے حق میں احتجاج۔ جنوبی پنجاب میں جزوی طور پر ہڑتال، کہیں پیٹرول پمپس بند تو کہیں کھلے ہیں، شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، آئل کمپنیز کے بجائے صرف پیٹرول پمپس پر ٹیکس نامنظور، پیٹرول پمپس مالکان کا مطالبات کے حق میں احتجاج۔ جنوبی پنجاب میں جزوی طور پر ہڑتال، کہیں پیٹرول پمپس بند تو کہیں کھلے ہیں، شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ عاصم صدیق سے جانتے ہیں، جی بتائیے گا رحیم یار خان میں پیٹرول پمپس مالکان کے کیا مطالبات ہیں؟ دیکھیں، رحیم یار خان میں پیٹرول پمپ مالکان کی جانب سے ہڑتال کا اعلان کیا گیا تھا، تو رحیم یار خان میں بھی جزوی طور پر ہڑتال دیکھنے میں آ رہی ہے، کیونکہ متعدد جگہوں پر پیٹرول پمپ کھلے ہوئے ہیں، کچھ پیٹرول پمپس ہیں وہ بند ہیں۔ یہ ہڑتال کی جا رہی تھی اور وہ پیٹرول پمپ مالکان کی جانب سے کہ ان کے جو ٹیکسز کا نفاذ کیا گیا ہے اس کو قبول نہیں کیا جاتا، اس کے نفاذ کے خاتمے کے خلاف انہوں نے یہ احتجاج کیا تھا، مگر جو ہڑتال ہے اس کو کہا جا سکتا ہے کہ یہ ناکام ہڑتال ہے، کیونکہ پیٹرول مالکان جو ہیں وہ ایک نقطے پر اکٹھے نظر نہیں آ رہے۔ کچھ پیٹرول پمپ کی جانب سے پیٹرول پمپس بند کیے گئے، مگر متعدد جو پیٹرول پمپس ہیں رحیم یار خان میں کھلے ہوئے ہیں۔ شہریوں کو کچھ مشکلات کا سامنا کچھ علاقوں میں ضرور ہے، کیونکہ وہ ان علاقوں میں جو دور دراز کے علاقے ہیں جہاں پر پیٹرول پمپ کی تعداد انتہائی کم ہے، وہاں پہ بند ہے، وہاں پہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ مگر جو شہری علاقے ہیں وہاں پر جو شہری ہیں ان کو وہاں پہ مشکلات کا سامنا کم کرنا پڑا ہے، کیونکہ شہر کے حدود میں پیٹرول پمپ زیادہ تر کھلے ہوئے ہیں۔ مگر جو پیٹرول پمپ مالکان ہیں ان کی طرف سے یہی مطالبہ ہے کہ حکومت کی طرف سے جو ٹیکس کا نفاذ کیا جا رہا ہے اس کا فیصلہ واپس لیا جائے، تاکہ عوام کو ریلیف دیا جا سکے، کیونکہ عوام جو ہے وہ پہلے ہی مہنگائی کی چکی میں پسی ہوئی ہیں۔ جب پیٹرول کی قیمتیں یا اس پر ٹیکس کا نافذ کیا جاتا ہے تو اس کا اثر جو ہے عام شہریوں پر ہوتا ہے اور چیزیں مہنگی ہوتی ہیں، کیونکہ کیریج جو ہے وہ اس کے ریٹ بھی اس کے ساتھ بڑھتے ہیں، اور جس کا مہنگائی کے ساتھ پیٹرول پمپ کو مستقل طور پر جب لنک کیا جاتا ہے تو اس کا اثر عام مہنگائی پر بھی ہوتی ہے۔ تمام چیزیں مہنگی ہوتی ہیں، اگر عوام کو ریلیف دینا ہے تو پیٹرول پمپس کو بھی ریلیف دینا ہوگا، پیٹرول کی قیمتوں بھی کم کرنا ہوگا، اس کے ساتھ ساتھ جو ٹیکس کا نافذ کر کے اس کو مہنگا کیا جاتا ہے اس کو بھی ختم کرنا ہوگا، نہیں تو مہنگائی کنٹرول نہیں ہوگی۔ مگر اس وقت جنوبی پنجاب سمیت رحیم یار خان میں جو صورتحال دیکھنے میں آ رہی ہے وہ یہی ہے کہ پیٹرول پمپ مالکان کی جانب سے ہڑتال کا اعلان کیا گیا، کچھ پیٹرول پمپس مالکان نے اپنی ہڑتال کو کامیاب کرنے کے لیے پیٹرول پمپس بند کیے ہیں، مگر متعدد جو ہے وہ کھلے ہوئے ہیں، خاص طور پر جو شہری علاقے ہیں وہاں پر پیٹرول پمپس جو ہے وہ کھلے ہوئے ہیں اور پیٹرول کو فروخت کر رہے ہیں۔ جی عاصم، یہ بھی بتائیے گا، کہیں پیٹرول پمپس بند تو کہیں کھلے ہیں، کیا وجہ ہے کہ ایک ہی پوائنٹ پہ یہ سب نظر نہیں آئے؟ بالکل ایسے ہی ہے، ایک پوائنٹ پر نظر نہیں آئے، کیونکہ جب ایسوسیشنز ہیں ان کی طرف سے تو پہلے کہا گیا تھا ہم اس پیٹرول پمپس کی سٹرائک کی ہڑتال جو ہے اس کو کامیاب کیا جائے گا۔ پورے پاکستان کی طرح جنوبی پنجاب کے جو رحیم یار خان کے پیٹرولیم ایسوسیشن تھی انہوں نے بھی اس میں حامی کی تھی کہ ہم پیٹرول ہڑتال کریں گے، مگر کچھ پیٹرول پمپ مالکان ہیں ان کی جانب سے کہا گیا کہ حکومتی فیصلے کو جو ہے ہم قبول کریں گے، جو ٹیکسز کا نفاذ ہے وہ حکومت کی طرف سے جو کیا جاتا ہے اس پر نیگوشیٹ کرنا چاہیے، نہ کہ عوام سے اس کی مشکلات میں اضافہ کرنا چاہیے۔ یہ پیٹرول پمپ مالکان جو ہیں ان کے ایسوسیشن کے درمیان ایک ہمیں فرق نظر آیا ہے اس سٹرائک کے طور پر۔ یہی دیکھنے میں آ رہا ہے کہ جس سٹرائک کو ہم سمجھ رہے تھے کہ یہ کامیاب ہوگی، تمام ایک پیجز پر ہے، مگر تو پیٹرول پمپ مالکان اور ایسوسیشن دونوں ایک پیجز پر نظر نہیں آئی، اور یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جنوبی پنجاب سمیت رحیم یار خان میں پیٹرول پمپس کی جو سٹرائک ہے وہ ناکام ہوتی نظر آئی ہے، کیونکہ صرف چند ایک پیٹرول پمپس بند ہیں جو دیہاتی علاقوں میں ہیں، وہ ایک تو وہ بند ہے، شہری علاقوں میں متعدد پیٹرول پمپ کھلے ہیں اور شہریوں کو پیٹرول کی دستیابی جو ہے، فیول کی دستیابی وہ یہاں پر ممکن ہو رہی ہے۔ جی عاصم صدیق، آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، صادق آباد میں بھی یہی صورتحال ہے اور اس حوالے سے ہمیں آگاہ کریں گے فرحان اقبال۔ جی فرحان، بتائیے گا، شہری پیدل ایک پمپ سے دوسرے پمپ تک جانے پر مجبور ہیں، اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ جی بالکل، صادق آباد میں جو ہے آئل کمپنیز کی جانب سے اسٹرائک کی جو کال دی گئی تھی اس پر 80% جو ہے وہ پمپس بند ہیں، جبکہ 20% کے قریب کھلے ہوئے ہیں، اور جس کو شہری جو ہیں وہ خوار ہو رہے ہیں۔ کبھی جن کے بائکس میں پیٹرول ختم ہو جاتا ہے یا گاڑی میں ختم ہو جاتا ہے وہ دھکا لگا کر ایک پمپ سے دوسرے پمپ تک جانے پر مجبور ہیں۔ خاص کر جو آزاد پمپ ہیں، جو آئل کمپنی سے آزاد جو ہے پیٹرول خریدتے تھے وہ بند ہیں بڑی تعداد میں، اور کچھ کمپنیوں کے جو ہے وہ پیٹرول پمپ جو ہے وہ کھلے ہوئے ہیں، جبکہ مالکان کا کہنا ہے کہ حکومت نے
उनके ऊपर डीजल की जानब से जो 1 रुपए कुछ पैसे का टैक्स है जो ऑयल कंपनी के ऊपर लगना चाहिए था, लेकिन वो पेट्रोल पंप मालिकान पर लगाया गया है, जिसके खिलाफ वो एहतजाज कर रहे हैं। जी, हमारे साथ फरहान इकबाल और आसिम सिद्दीक मौजूद थे। बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आपको बता रहे हैं ऑयल कंपनीज के बजाय सिर्फ पेट्रोल पंप्स पर टैक्स नामंजूर है। पेट्रोल पंप्स मालिकान का मुतालबात के हक में एहतजाज है। बेशतर पेट्रोल पंप्स बंद हैं, शहरी परेशान है, शहरी पैदल एक पंप से दूसरे पंप तक जाने पर मजबूर है। आपको अपडेट कर रहे हैं हम खबर के हवाले से। ऑयल कंपनीज के बजाय सिर्फ पेट्रोल पंप्स पर टैक्स नामंजूर। पेट्रोल पंप्स मालिकान का मुतालबात के हक में एहतजाज। बेशतर पेट्रोल पंप्स बंद हैं, शहरी परेशान है, शहरी पैदल एक पंप से दूसरे पंप तक जाने पर मजबूर हो गए। अब रुक करेंगे लोधरा का। लोधरा में भी पेट्रोल पंप्स मालिकान का हड़ताल से लाताल्लुकी का ऐलान। शहर के तमाम पेट्रोल पंप्स मामूल के मुताबिक खुले। अमले का कहना है कि हमें हड़ताल के हवाले से कोई हिदायत नहीं मिली है। आपको अपडेट कर रहे हैं। लोधरा में भी यही सूरत हाल है। लोधरा में पेट्रोल पंप्स मालिकान का हड़ताल से लाताल्लुकी का ऐलान है। शहर के तमाम पेट्रोल पंप्स मामूल के मुताबिक खुलेंगे। हमें हड़ताल के हवाले से कोई हिदायत नहीं मिली, पेट्रोल पंप अमले का ऐसा कहना है। लियाकतपुर में पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन की कॉल पर पंप्स बंद। पेट्रोल पंप्स बंद होने की वजह से आवाम को मुश्किलात का सामना है। मजीद तफसीलात जानेंगे हसन महमूद से। जी हसन, बताइएगा। देखिए जी, मुल्क भर की तरह जो पंप्स एसोसिएशन है, इनकी तरफ से शटर डाउन का ऐलान किया गया था। लियाकतपुर में भी जो आज शटर डाउन हड़ताल है वो जारी है। तहसील भर में जो पंप्स एसोसिएशन है, इनकी तरफ से सुबह सवेरे जो है 7 बजे करीब कॉल दी गई थी कि जो पंप्स हैं ये मुकम्मल तौर पर बंद रहेंगे। इस हवाले से मैं एक पंप पे मौजूद हूँ। यहाँ पे देखा जा सकता है कि पंप जो है ये बंद है और जो यहाँ पे पंप एसोसिएशन है उनकी तरफ से मुकम्मल जो शटर डाउन हड़ताल है वो की जा रही है। जो छोटे यूनिट्स हैं उनकी तरफ से जो पेट्रोल है उसकी सप्लाई जो मुसाफिर हैं वो आ रहे हैं पेट्रोल के हसूल के लिए, उन्हें तो दिया जा रहा है, मगर जो बड़े पंप्स हैं उन पे मुकम्मल तौर पर जो पेट्रोल है वो नहीं मिल रहा। कुछ ऐसे इलाके यहाँ पे मौजूद हैं जो कि देहाती इलाके कहलाते हैं, वहाँ पे पंप्स जो है वो मुसाफिरों को जो है ये पेट्रोल दे रहे हैं, फराहमी दे रहे हैं। पेट्रोल के हसूल के जो लोग आ रहे हैं उन्हें पेट्रोल मिल रहा है, मगर यहाँ जो सूरत हाल पंप्स की देखी जा रही है कि यहाँ पे जो कनाते हैं वो लगा के पेट्रोल पंप्स को बंद किया हुआ है। इनकी तरफ से जो मुतालबा किया गया था पंप्स मालिकान की तरफ से कि हुकूमत जो है इन पे जो इजाफी टैक्स लगा रही है उस टैक्स में जो है इन्हें टैक्स जो है वो हटाया जाए ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हासिल कर सकें, मगर हुकूमत जो है इन पे टैक्स का बोझ जो डाल रही है, जिसकी वजह से इनकी तरफ से जो है ये कॉल दी गई थी कि जब तक हुकूमत जो है ये टैक्स इजाफी जो टैक्स है ये ख़त्म नहीं करेगी, ये जो पंप्स हैं इन्हें मुकम्मल तौर पर दिया जाएगा। और आज जो है ये हड़ताल जारी है। मुल्तान में मैट्रिक इम्तिहानात नताइज की तारीख का ऐलान कर दिया गया। इम्तिहानात के नताइज का ऐलान 9 जुलाई को किया जाएगा। नजरिया CD रिजल्ट हासिल करने की फीस 300 रुपये है। मजीद बता रही है सुहेरा तारिक। जी सुहेरा, क्या करिएगा। मुल्तान तालीमी बोर्ड की जानिब से मैट्रिक सालाना इम्तिहानात 2024 के नताइज की तारीख का जो है वो ऐलान कर दिया गया है। पंजाब बोर्ड्स कमेटी ऑफ चेयरपर्सन्स का जो इजलास हुआ है उसमें ये फैसला किया गया है कि 9 जुलाई 2024 को मैट्रिक के सालाना इम्तिहानात के नताइज जो हैं उनका ऐलान मुतवक्के है। मुल्तान बोर्ड की जानिब से वेबसाइट पर भी ये मालूमात जो हैं वो शेयर कर दी गई हैं कि 9 जुलाई को मुतवक्के है कि रिज़ल्ट का ऐलान जो है वो किया जाएगा। इस हवाले से जो स्टूडेंट्स हैं वो मुल्तान बोर्ड की वेबसाइट से सुबह 10 बजे 9 जुलाई को अपना नतीजा जो है वो देख सकते हैं और उसके साथ साथ रिज़ल्ट CD जो है उसकी सूरत में भी नतीजा हासिल किया जा सकता है, जिसकी कीमत जो है वो 300 रुपये फ़ीस रखी गई है। और आज 5 जुलाई तक जो स्टूडेंट्स हैं वो CD के लिए फ़ीस बैंक में जमा करवा सकते हैं और मुल्तान बोर्ड के सहूलत मरकज़ से वो ये CD हासिल कर सकेंगे। नताइज का ऐलान होने के बाद हतमी तारीख का जो है वो ऐलान नहीं किया गया। यही कहा गया है कि 9 जुलाई को मुतवक्के है कि मैट्रिक के सालाना इम्तिहानात का नतीजा जो है वो जारी कर दिया जाएगा। इस हवाले से स्टूडेंट्स जो हैं वो तैयारी पकड़ लें। जी सुहेरा तारिक, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहेंगे। जनूबी पंजाब में उल्टी गंगा बहने लगी। गंदम सस्ती, आटा महंगा। आटा फी किलो 100 से 110 रुपये फरोख्त होने लगा। रोटी 18 से 20 रुपये में दस्तयाब। हुकूमत की तरफ से जुल्म किया जा रहा है, शहरियों की दुहाई। आपको अपडेट कर रहे हैं।
जनूबी पंजाब में उल्टी गंगा बहने लगी, गंदम सस्ती आटा महंगा, आटा फी किलो 100 से 110 रुपए फरोख्त होने लगा, रोटी 18 से 20 रुपए में दस्तयाब है। हुकूमत की तरफ से जुल्म किया जा रहा है, शहरियों की दुहाई। आपको बता रहे हैं मुल्तान में आटे की कीमतों में कमी ना आ सकी, चक्की का आटा 100 रुपए फी किलो फरोख्त, आम मार्केट में फी किलो आटा 110 रुपए तक फरोख्त होने लगा। शहरी सस्ते आटे की खातिर दरबदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। क्या कहते हैं जानते हैं अहमर खान से। जी अहमर, बताइएगा क्या तफसीलात है इस हवाले से। जी बिल्कुल, मुल्तान में गंदम की बड़ी कीमतें कम होने के बाद जो है मुल्तान में आटे की कीमतों के हवाले से बात करें तो मुल्तान में आटे की कीमत जो है वो कम ना हो सकी है। मुल्तान में बात करें चक्की आटे की कीमत के हवाले से तो 100 रुपये फी किलो जो है वो फरोख्त किया जा रहा है, जबकि फ्लोर मिल आटे के हवाले से बात करें जो सुपर फाइन आटा है वो मुल्तान की आम मार्केट में जो है वो 110-120 रुपये फी किलो जो है वो फरोख्त किया जा रहा है, जिससे आम शहरी को जो है वो काफ़ी मुश्किलात का सामना भी करना पड़ रहा है और दर बदर की ठोकरें खाने पर जो है वो भी मजबूर हो चुके हैं। इस वक्त हमारे साथ एक हम आटा चक्की पर मौजूद है, जहां पर हमारे साथ शहरी भी मौजूद है, उनसे बात करते हैं उनका क्या कहना है। क्या कहना चाहेंगे, आपको क्या मुश्किलात जो हैं वो सामने आ रही हैं आटे के हवाले से, और क्या कहना चाहेंगे? मेरा तो कहना बहुत यही है कि चक्की का आटा अवेलेबल बड़ी मुश्किल से हो रहा है और जो सुपर फाइन आटा है वो 110 रुपये में 120 रुपये में मिल रहा है और वो मिल भी नहीं रहा। ठीक है, तो हम कभी उस महल्ले कभी उस महल्ले जा के लोगों से मिल के फिर ये चक्की का आटा, ये हमारे एक मोहल्ले में चक्की खुली है तो इनसे आटा ले रहे हैं। इनका आटा भी अच्छा है और उससे खालस भी है, जबकि फ्लोर मिल मालकान को गवर्नमेंट सब्सिडी भी दे रही है और आवाम तक रिलीफ भी नहीं पहुंच रहा। तो ऐसे ही हर चीज़ में महंगाई है, तो महंगाई को जब तक गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं करेगी तो ये कैसे मामलात लोगों के ठीक होंगे। बिजली के बिल है, पेट्रोल है, हर चीज़ तो महंगी गवर्नमेंट करती जा रही है। आम शहरी को रिलीफ कहाँ मिल रहा है हमें नहीं पता। जी बिल्कुल, आम शहरी को रिलीफ कहाँ मिल रहा है, शहरी कह रहे हैं कि हमें नहीं मालूम। इस वक्त हमारे साथ आटा चक्की मालकान भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं उनका क्या कहना है। क्या कहना चाहेंगे, आपको क्या क्या चीज़ मुश्किलात पेश आ रही है और आटे की कीमतें जो है वो अब तक कम क्यों नहीं की जा सकी? आटे की कीमत गंदम की फसल आने से पहले 150 रुपये किलो थी, गंदम की फसल आने के बाद 100 रुपये किलो है। अब गंदम जो है उसकी शार्टेज होती जा रही है, फिर रेट बढ़ सकता है, ठीक है ना। और उसके अलावा हमें बिजली बहुत महंगी होती जा रही है, उसके भी असरात इसके ऊपर पड़ेंगे। बस अल्लाह देखा। जी बिल्कुल, आटे की कीमतें जो है वो पहले जो है वो बताई जा रही है कि 150 रुपये फी किलो फरोख्त किया जा रहा था। मुल्तान शहर में मुख्तलिफ आटा चक्की पर जो है वो 150 रुपये फी किलो, जबकि दूसरा जो फ्लोर मिल आटा था वो 120 से 130 रुपये फी किलो जो है वो फरोख्त किया जा रहा था। जबकि गंदम की कीमतें जो है वो कम होने के बाद भी जो है वो मुल्तान शहर में आटे की कीमतें जो है वो आटा चक्की मालकान ने तो कम कर दी गई हैं, लेकिन फ्लोर मिल आटे की हवाले से बात करें तो उनकी जानिब से जो है वो बड़ी कमी जो है वो नहीं की गई, जिससे शहरियों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जबकि फ्लोर मिल मालकान का ये कहना है कि बिजली के बिलों में इजाफे के बाद जो है वो आटे में कमी जो है वो मजीद भी नहीं की जा सकी। हुकूमत पंजाब से बार बार अपील कर रहे हैं कि फौरी तौर पर जो है वो बिलों की कीमतों में भी कमी की जाए और इसके साथ साथ जो उसके बाद जो है वो आटे की कीमतों में जो है वो खासी तौर पर कमी की जाएगी। जबकि शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब और कम की जाए। अहमर खान, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। अब बात करेंगे जखीरा अंदोजों की। मुल्तान में जखीरा अंदोज माफिया बेलगाम, गंदम सस्ती होने के बावजूद आटा महंगा। गुज़िश्ता 3 रोज में आटे का 15 किलो का थैला 200 रुपये महंगा। आटे के थैले की कीमत 1400 रुपये हो गई। तंदूर मालिकान और शहरी आटा महंगा होने पर परेशान है। मजीद क्या कहना है जानेंगे शकील सुल्तान से। जी शकील, लगा करिएगा। जी, हुकूमत की नाकिस पॉलिसियों का नुकसान हमेशा ही गरीब को होता है। पिछले कुछ दिनों में हम देख रहे थे कि गंदम का रेट जब बहुत कम था तो आटे का रेट देख रहे थे, तंदूर पर रोटी जो है वो सस्ती हो रही थी, आटे का रेट जो है वो सस्ता हो रहा था। अब दोबारा से आटे की कीमत जो है वो बढ़ने लगी है। आटा जो है उसका थैला 15 किलो का अब 1400 रुपये का हो गया है और तंदूर पर जो है वो और आम दुकानों पर जो है आटा 100 रुपये किलो फरोख्त होने लगे। इससे पहले 70, 80 और 90 तक मिल रहा था। आम शहरी भी इससे परेशान होते हैं और दुकानदार जो तंदूर मालिकान हैं उनको भी मसाइल होते हैं। बात करते हैं, यहाँ पे एक तंदूर पर मौजूद है जहाँ पे शहरी रोटियाँ खरीदने आए हुए हैं। आम शहरियों से बात करते हैं। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे, रोटी जो वो भी महंगी होगी और आटा भी महंगा हो रहा है, क्या समझते हैं, क्या मसले हो सकते हैं और हुकूमत को क्या पैगाम देना चाहेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि गवर्नमेंट की नाकिस पॉलिसी की वजह से किसान को जो लॉस हुआ है, अभी भी आप जाएं ओपन मार्केट में गंदम जो है वो किसान से ख़रीदी नहीं जा रही है। 2800, 2700 और 2900 रुपये मन से ज़्यादा नहीं ले रहे।
ब्रोकर जितने भी हैं और सियासतदान जिन्होंने अपने वो भर लिए हैं, अपना मतलब गंदम स्टॉक कर लिया, अब उनको फ़ायदा होगा, आवाम को इससे कोई रिलीफ नहीं मिलने वाला। वो सारा का सारा फ़ायदा गवर्नमेंट उससे उठाएगी और उनके जो कारिंदे हैं जिन्होंने ये स्टॉक कर रखी है गंदम, उनको इसका फ़ायदा होगा, आवाम को इसका कोई रिलीफ नहीं मिलने वाला। ज़ख़ीरा अंदोज़ों ने हमेशा ही गरीबों को परेशान किया है। अच्छा, तंदूर मालिक से भी बात करते हैं। हुजूर क्या कहना चाहेंगे, ये आटा अब कितने दिनों में कितना महंगा हुआ है और रोटी पर कितना असर पड़ सकता है इसका? आटा कुछ दिन पहले ऐसे तकरीबन 15-20 दिन पहले बल्कि महीने पहले आटा सही रेट मुनासिब था रेट, अब मुसलसल 150 रुपये बढ़ने लग रहा है। पहले मिल रहा था 1100 रुपये का 15 गट्टू, फिर 1150, 1200, 1300, अब 1400, 1500 के आवाज़ हो गई। ये 1500 रुपये का 15 किलो गट्टू आटे का मिल रहा है। अभी जैसे हमारा आटा महंगा होता जा रहा है, उधर से हुकूमत मरियम नवाज के हुकूमत की तरफ से कहते हैं रोटी 13 रुपये की बेचो। रोटी जो बाहर नहीं खाती किस तरह बेचेंगे? तो उनको चाहिए आटे पे कंट्रोल करें। हुकूमत का ज़ख़ीरा अंदोज़ों पर और गंदम की कीमत पर कंट्रोल नहीं है, लेकिन तंदूर मालकान पर पाबंदी है कि सस्ती बेचें। लेकिन इस वक्त आटे की जो बहावलपुर में गंदम सस्ती मगर आटा महंगा हो गया। मार्केट में 15 किलो का थैला 1200 से 1550 का हो गया। मैदा का 50 किलो का थैला 6000 का हो गया। फ्लोर मिल्स ने रवा सीजन 60,000 कॉटन गंदम खरीदी थी। मजीद जानेंगे ताहिर जोइया से। जी ताहिर, बहावलपुर में गंदम की क्या सूरत हाल है? देखिए जी, इस वक्त गंदम का रेट तो 3200 रुपए तक जो है वो गंदम फरोख्त की जा रही है। मैं इस वक्त गल्ला मंडी में ही मौजूद हूँ, लेकिन सूरत हाल जो है आटे की देखें तो वो थोड़ी सी गैर यकीनी की सूरत हाल बरकरार है, क्योंकि आटे का रेट जो है वो मुसलसल ऊपर जा रहा है। और फ्लोर मिल्स एसोसिएशन से भी यही कहा जा रहा है कि मार्केट में गंदम का रेट जो है वो बढ़ा है, जिसकी वजह से आटा जो है उसकी कीमतों में इजाफा देखने में आ रहा है। लेकिन अगर बात करें गंदम खरीदारी मुहिम की, तो फ्लोर मिल की जानिब से जो जराए हैं हमें बताते हैं फूड डिपार्टमेंट के 2500 और 2700 रुपए फी मन के हिसाब से खरीदी गई। तो जो शहरी हैं वो भी यही कहते नजर आते हैं कि अगर सस्ती गंदम खरीदी गई है तो फिर आटा ही सस्ता मिलना चाहिए। तो इन सारे सवालों के जवाब के लिए हमारे साथ सदर मौजूद है करियाना मर्चेंट्स एसोसिएशन भावलपुर के, उनसे हम बात कर लेते हैं। सर, ये गैर यकीनी सूरत हाल पहले तो हुई क्यों है? सर, सबसे पहले तो गवर्नमेंट ने जिस तरह गंदम आई थी, उन्होंने रेट अनाउंस किया 3900 रुपये, तो उसमें मार्केट में एक अच्छी फिजा कायम हो गई थी। ज़मींदारों के हवाले से वो खुश थे और एक मैकेनिज्म बन गया था फ्लोर मिल्स का भी कि 3900 के हिसाब से हमारी ये गंदम आएगी। लेकिन गवर्नमेंट ने जब गंदम नहीं खरीदी तो उसकी वजह से मार्केट में रेट गंदम के काफ़ी कम हो गए। तो उसकी वजह से फ्लोर मिल्स ने भी रेट्स कुछ कम किए, लेकिन गंदम के हिसाब से इन्होंने रेट्स कम नहीं किए। लास्ट टाइम तो ऐसा भी हुआ कि गंदम 2300-2400 तक भी लोगों ने परचेज़ की, तो उसके हिसाब से रेट कुछ कम हुए, बिल्कुल कम हुए। ऐसा नहीं कि नहीं हुए, बिल्कुल कम हुए। लेकिन अचानक ही गवर्नमेंट की पॉलिसी कुछ चेंज हुई, टैक्सेस के मामला आए सामने, तो एकदम जो टैक्सेस के मामला सामने आए तो मार्केट में गंदम के रेट इंक्रीज़ हो गए, काफ़ी बढ़ गए। तो गंदम 3200-3300 पे जाकर पहुंच गए, जिसकी वजह से फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने, फ्लोर मिल्स मालकान ने, सबने गंदम को मद्देनजर रखकर, सामने टैक्सेस को मद्देनजर रखते हुए इन्होंने रेट को बढ़ा दिया। और आज मार्केट में काफ़ी आटे का रेट काफ़ी ऊपर 200-300 रुपये बैग चला गया है। मैदे पर तकरीबन 500 से 1000 रुपये बैग का फ़र्क पड़ गया है। अब जबकि मार्केट दोबारा डाउन की तरफ जा रही है, गंदम 3200-3300 को टच करके दोबारा आज मार्केट 2800-2900 हो गई है। तो फ्लोर मिल्स वालों को, इन एसोसिएशन को भी चाहिए कि रेट्स को कुछ कम करें जो मौजूदा सूरत हाल उसके मुताबिक। एक्चुअली असल जो हमारे जो बुनियादी मेरा पॉइंट है वो ये कि हमारे जो बिजली के बिल है ना, वो चाहे सार्फिन है, चाहे वो इंडस्ट्री वाले लोग हैं, सब इनसे डिस्टर्ब है। खुसूसन मैं कहूँगा कि जो गरीब आदमी है, गरीब तबका, जिसकी औसतन एवरेज है 30,000 या 40,000 रुपये सैलरी है, वो 15,000 रुपये तो बिल भर देता है। बाकी चीज़ों को वो किस तरह मैनेज कर पाएगा? मेरा ख्याल है कि अगर आटे का बैग 100-200 रुपये ऊपर नीचे हो जाता है तो मैं भी शायद कोई किराना दुकानदार उसको ओबलाइज कर सकता है, दे सकता है। लेकिन वो गरीब आदमी जिसका बिजली का बिल 5,000-6,000 था, आज वो 15,000 या 20,000 रुपये बिल चला गया, तो वो बेचारा वो कहाँ से भरेगा? हमारा मेन जो इस वक्त है बिजली के जो टैक्सेस हैं, बिजली की जो रेट्स हैं ना, इसने आम आदमी की कमर तोड़ दी है। और बिल्कुल आम आदमी की कमर तोड़ दी है। करियाना मर्चेंट एसोसिएशन के सदर जो है उनका भी यही कहना है कि अगर मार्केट का जो मैकेनिज्म है वो देखा जाए तो उसमें आटा जो है वो सस्ता मिलना चाहिए, लेकिन जो लवाजमात हैं वो बढ़ गए हैं, टैक्सेस नए लगे हैं। तो गंदम सस्ती मगर आटा महंगा। आटा 100 से 110 रुपए किलो फरोख्त होने लगा। तंदूर मालिकान ने भी रोटी महंगी करने का फैसला कर लिया। तंदूर मालिकान कहते हैं 1200 मिलने वाला आटे का थैला 1500 रुपए तक जा पहुंचा। 13 रुपए में रोटी फरोख्त कर रहे हैं। इसी बारे में मजीद बात करेंगे अख्तर मजाज से। जी अख्तर, आगाह करिएगा। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए आटे के हवाले से तो मियाँ वाली में सूरत हाल ये है कि आटा 100 रुपए किलो तक पहुंच गया और कई इलाकों में आटा 110 रुपए किलो भी बेचा जा रहा है। यहाँ पे हमारे साथ तंदूर के मालिक मौजूद हैं। क्या कहेंगे इस हवाले से, क्या प्लान है आप? सर जी, बात ये है कि
आटा हुकूमत ने गंदम बिल्कुल सस्ती की हुई है, लेकिन जो हमें मार्केट से आटे का थैला मिल रहा है तकरीबन 3-4 रोज़ हो गए हैं, 1500 रुपये का थैला मिल रहा है। इसमें ना हमें 13 रुपये में नुकसान है रोटी में। हम रोटी 13 रुपये की अब सेल नहीं कर सकते, क्योंकि हम रोटी के रेट को मज़ीद बढ़ाएंगे, क्योंकि और अखराजात बहुत हैं। आप देखें, गैस का बिल है, बिजली का बिल है, मुलाजमों की तनख्वाहें हैं, अखराजात हैं। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने इनकी बात सुनी कि रोटी जो है 13 रुपये में बेचना इनके लिए अब मुश्किल हो चुका है। गुज़श्ता 3-4 रोज़ से आटा महंगा मिल रहा है। इस हवाले से नान भाइयों की जो तंजीम है उनकी बाकायदा मीटिंग होगी, DC ऑफिस को भी मुतला किया जाएगा और उस मियाँ वाली में भी रोटी के नर्ख बढ़ जाएंगे। जी अख्तर, बहुत शुक्रिया। अब रुक करेंगे रहीम यार खान का। रहीम यार खान में आटे की कीमतों में कमी, 20 किलो आटे का थैला 1100 से 1400 रुपए का मिल रहा है। 20 किलो आटे की कीमत 1400 रुपए से कम होकर 1250 पर हो गई। आटे की कीमत कम होने के बावजूद शहरी कमर तोड़ महंगाई से परेशान है। मजीद जानेंगे आसिम सिद्दीक से। जी आसिम, बताइएगा क्या सूरत हाल है रहीम यार खान में आटे की कीमतों में कमी है और जो आटे का थैला वो 1100 से 1400 रुपए का हो गया, क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, आटे का थैला 1400 रुपया तक गया था, क्योंकि 1150 रुपये इसकी कीमत थी। 20 किलो का थैला 1400 रुपये तक गया। जो फ्लोर मिल की जानिब से कहा गया वो यही था कि आटा इस वजह से महंगा किया जा रहा है क्योंकि पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं, टैक्सेस का नफाज किया गया है। मगर आहिस्ता आहिस्ता फिर जो आटे की कीमत है वो कम होकर 1250 रुपये तो हो गई है, मगर महंगाई इतनी है कि एक आम शहरी और गरीब जो मजदूर तबका है उसका गुजारा करना मुश्किल है। क्योंकि मजदूर अभी भी आप देख रहे हैं कि इस वक्त भी, आज के दिन जुम्मे के दिन भी, जब मार्केट बंद होती है, काम इंतजार में सड़क के किनारे बैठे हैं इस हवाले से कि वो पेट का ईंधन पालने के लिए जो मेहनत मजदूरी है वो कर सके। आपके कितने बच्चे हैं बाबा? 7 बच्चे हैं। तो किस तरह से गुजारा करते हैं? आटा मिलता है कि आपका कितने? मिलता ही नहीं है, मिलता ही नहीं है आटा। तो किस तरह से आप लोग गुजारा करते हैं? किलो 2 लेकर आगे गुजारा कर रहे हैं। तो आप कैसे, महंगाई में आप लोगों को काम मिलता है? भाई महंगाई की तो बात ही नहीं रहेगी, इतनी महंगाई है। और आटा लेकर खाने के बच्चे दिहाड़ी लगती नहीं है तो कहाँ से आटा लें? आटा 150 रुपये का मिलता है, कहाँ से लेकर कैसे बच्चे को गुजारा करें? बच्चों का काम है ही नहीं। तो किस तरह से आपका 1 किलो रोजाना कितने किलो आटा लगता है? 2-3 किलो लगता है। बच्चे हैं हमारे। तो मजदूरी कितनी मिलती है? मजदूरी है ही नहीं, लगती नहीं है मजदूरी। अगर लग जाए तो कितनी मिलती है? बस ये अब 600 रुपये दिहाड़ी चल रही है, वो भी लगती है, हफ्ते में एक लगती है, नहीं तो वैसे बैठे। देखिए, आटा जो है वो एक ऐसा जुज्व है जो पेट का ईंधन पाने के लिए, अगर रोटी खाएंगे तो पेट का ईंधन पाला जाएगा। और चीज सूरत हाल है कि आटा बेशक सस्ता हो गया, मगर एक आम आदमी जो गरीब है, जो मजदूर है, वो कैसे आपको मदद कर सकते? सारा दिन यहाँ पे आता है, 600 रुपये उसको दिहाड़ी मिलती है, वो भी काम मिल जाए तो उसमें से इतना है कि 3 से 4 किलो आटा खरीदने की इनके पास ताकत नहीं होती कि रोजाना के लिए आटा ही खरीदना कर जा सके। कैसे आप इस महंगाई में गुजारा करते हैं? हो सकता है आप लोगों को गुजारा बहुत मुश्किल से होता है, काम कार है नहीं। सुबह से आते हैं, शाम तक इधर बैठे रहते हैं, शाम को घर जाते हैं। इतनी महंगाई है, क्या गुजारा होगा? देखिए, यही स्टोरी है, यही कहानी है जो हर मजदूर की यहाँ पर है कि काम मिलता नहीं, आटा खरीद नहीं सकते, रोटी खा नहीं सकते। इस महंगाई में गुजारा कैसे हो? जी, गुजारा कैसे होगा? आसिम सिद्दीक, बहुत शुक्रिया, आप हमें मीट कर रहे थे। महकमे दाखिला पंजाब के आशूरा के दिनों में इंटरनेट बंद करने की सिफारिश, यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप, टिकटॉक और इंस्टाग्राम बंद करने की सिफारिश की गई। महकमे दाखिला ने 6 से 11 मुहर्रम के दौरान इंटरनेट बंद करने की सिफारिश की। महकमे दाखिला ने मुहर्रम के दौरान इंतशार को रोकने के लिए ये इकदाम उठाए हैं। मजीद हमें अपडेट करेंगे कैसर खोकर। जी कैसर, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं? हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है, आपको अपडेट कर रहे हैं। महकमा दाखिला पंजाब की आशूरा के दिनों में इंटरनेट बंद करने की सिफारिश, यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप, टिकटॉक और इंस्टाग्राम बंद करने की सिफारिश की गई। महकमा दाखिला ने 6 से 11 मुहर्रम के दौरान इंटरनेट बंद करने की सिफारिश की। महकमा दाखिला ने मुहर्रम के दौरान इंतशार को रोकने के लिए ये इक़दाम उठाया है। 1977 में आज के रोज भुट्टो हुकूमत का तख्ता उलट गया। पीपल्स पार्टी मुल्क भर में यौम सियाह मना रही है। मजीद जुनेद अनवर हमें आगाह करेंगे। जी बिल्कुल, 5 जुलाई साबिक
वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत का तख्ता उल्टा गया और पीपल्स पार्टी आज मुल्क भर के अंदर जो है वो यौम स्याह मना रही है। इस हाल से मुल्तान में भी पीपल्स पार्टी के रहनुमा अरशद इकबाल भुट्टा की जानिब से भी तकरीब मुनक्किद की गई, जिसके अंदर पार्टी रहनुमाओं ने जो है वो स्याह पट्टियाँ पहन कर जो है वो शिरकत की। इस मौजूद से बात भी करेंगे। भुट्टा साहब क्या कहेंगे आज के हवाले से, और ख़ास तौर पर स्याह पट्टियाँ पहन कर जो है वो कारकुनान शरीफ? जैसा कि आपको मालूम है कि 5 जुलाई पाकिस्तान की तारीख का स्याह तरीन यौम है, और इस दिन न सिर्फ ये कि जमहूरियत का गला दबाया गया, बल्कि मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल था, रोशन मुस्तकबिल, उसका गला दबाया गया। और ये वो शब खून था कि जो पाकिस्तान और दुनिया भर की सियासी तारीख में हमेशा याद रखा जाएगा, क्योंकि जनरल ज़ियाउल हक ने एक ऐसे मुनाफिक का किरदार अदा किया, एक ऐसे ताले आज़मा का किरदार अदा किया, और भुट्टो साहब जो अवामी नुमाइंदगी कर रहे थे, जो पाकिस्तानियों को मायूसी के दलदल से बाहर निकाल रहे थे, जो पाकिस्तानियों को नई ज़िंदगी की राह दिखा रहे थे, जो पाकिस्तान को खुशहाली के रास्ते पे चलाना चाह रहे थे, जो दुनिया भर के अक़वाम में पाकिस्तान के मयार को, पाकिस्तान के मकाम को बुलंद कर रहे थे, वो सारे रास्ते रोके गए। और वो रास्ते ऐसे रुके कि आज तक वो एक सिलसिला जारी है, और खुदा जाने ये कब तक जारी रहे। क्या कहेंगे आज के हवाले से? जी, आज के हवाले से मैं कहूँगा कि शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कहा था कि अगर मुझे कत्ल किया गया तो हिमालय रोएगा। वो उन्होंने सही कहा था, हिमालय आज भी रो रहा है। आज भी पाकिस्तान के अवाम बदहाल हैं, नफरत का शिकार हैं, तासुब का शिकार हैं। जी बिल्कुल, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान है वो इस वक्त सरापा एहतजाज है, और उनका कहना है कि ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की जो कुर्बानियाँ हैं उनको याद रखा जाएगा, और जो जमहूरी हुकूमत का जो शब